السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد رکھے۔ بچوں، آج میں پھر کلاس 10th کے اندر جو اردو درخشاں بک ہے اور اس میں جو چیپٹر نمبر 8 یعنی سبق نمبر 8 ہے اسے پڑھانے والا ہوں، اس لیے آپ سب پورے ویڈیو پر بنے رہیے اور ہم جو پڑھا رہے ہیں اسے دل سے، لگن سے اور محنت سے پڑھیے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے یاروں میں، دوستوں میں شیئر بھی کیجیے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ آئیے یہاں سے ہم اردو درخشاں چیپٹر نمبر 8 کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا ہے۔ تو دیکھیے، چیپٹر نمبر 8 میں ادب کی پہچان یہ ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو لکھنے والے رائٹر یعنی مصنف ہیں ان کا نام ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ انہوں نے ہی ادب کی پہچان کو لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں اور ادب کی پہچان پر مضمون ڈاکٹر عبد المغنی نے کیوں لکھا ہے، وجہ کیا ہے لکھنے کی، تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ادب کی پہچان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصنف، جب کوئی رائٹر کسی بھی کہانی کو یا کسی بھی چیز کو لکھ رہا ہو تو اس کی لکھاوٹ یعنی اس کی جو تحریر ہے اس میں ادب ہے یا نہیں ہے، تمیز ہے، تہذیب ہے یا نہیں ہے۔ پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے اسے پڑھ کر کیا سیکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ اگر کسی کہانی کو پڑھ کر انسان کچھ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ادب کے دائروں کا ایک حصہ ہے۔ ادب اسی کو کہتے ہیں۔ جب ہم ادب کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آنے والا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے حالات زندگی ڈاکٹر عبد المغنی کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ادب کی پہچان کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر سوالات کو دیکھیں گے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش سن عیسوی 1934 اورنگ آباد میں ہوئی ہے۔ اورنگ آباد یہ بہار میں ہے، ریاست بہار سے ان کا تعلق تھا اور 1934 میں ڈاکٹر عبد المغنی پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد کا نام مولانا عبد الرؤف تھا۔ ان کے والد عالم دین تھے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور آگے کی تعلیم مدرسہ شمس الہدیٰ سے ہوئی ہے اور وہاں سے عالم کی سند حاصل کی ہے۔ شروعاتی تعلیم جو ان کی تھی وہ گھر پر ہوئی ہے، یعنی کہ اپنے والد کے زیر نگرانی، اپنے والد کے سایہ میں ابتدائی تعلیم ہوئی ہے۔ پھر جب آگے کی تعلیم حاصل کرنی تھی، آگے پڑھنا تھا، تو ان کا داخلہ ہوا مدرسہ شمس الہدیٰ اور وہاں سے انہوں نے عالمیت تک کی ڈگری حاصل کرنی، یعنی کہ آپ عالم دین بن گئے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ عصری تعلیم بھی حاصل کی۔ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب جو تھے وہ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ دنیاوی تعلیم یعنی عصری تعلیم جو ہوتی ہے اس کا بھی نالج ان کے پاس تھا، یعنی کہ میتھمیٹکس، انگریزی، ہندی، یہ سب جو چیزیں پڑھائی جاتی ہے دنیاوی تعلیم میں وہ بھی تعلیم ان کے پاس تھی اور انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اور انگریزی میں ایم اے بھی کیا تھا۔ کیا کمال ہے، دیکھ لیں آپ، عالم دین بھی ہے اور ایم اے بھی کیا ہے تو انگریزی سے، ہے نا؟ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ دیکھیے، محنت اگر آپ کریں گے نا اور آپ کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں لگن سے لگے رہیں گے تو اس کا پھل، اس کا فائدہ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ بس آپ کو کسی میدان میں بڑا بننا ہے، کسی میدان میں جیت حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو محنت کرنا ہی پڑے گا۔ جیسا کہ ڈاکٹر عبد المغنی یہ محنت کیے، عالم دین بنے اور انگریزی میں ایم اے بھی کیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہم یہاں سے۔ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں انگریزی کے لیکچر بحال ہوئے۔ جب آغاز ملازمت ان کی ہوئی تو انہوں نے جب شروع کیا ملازمت کو تو سب سے پہلے پٹنہ یونیورسٹی، پٹنہ کالج ہے، اس میں ان کی بحال ہوئی لیکچر پر، اور انگریزی میں یعنی انگریزی لیکچرر یہ بنے۔
देखिए कितनी कमाल की बात है। उसके बाद इनका वहाँ जो है ना अंग्रेज़ी लेक्चर बहाल होने के बाद तबादला हो गया। तबादला मतलब कि ट्रांसफ़र हो गया और ये BAN कॉलेज में याद रखेंगे, वहाँ चले गए और वहीं से सबका दोष हुए। यानी कि BAN कॉलेज में आप रहे और वहीं से आप रिटायर भी हुए। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल मुगनी शेर व अदब के मुतअद्दिद असनाफ के हालात पेश किए हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है ना, ये बड़े ही माहिर फ़न थे, इसे आप हरफन मौला कह सकते हैं। तहरीरी मैदान में इन्होंने शेर व अदब भी लिखा है, यानी कि शेर व शायरी भी की है और अदब की बातें भी लिखी है। साथ ही साथ ये तनकीद निगार भी थे। इन्होंने अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी पर तनकीद निगारी भी की है और ये जो है ना मुतअद्दिद किताबें लिखी है तनकीदी मज़ामीन के, जिसमें से तकरीबन इन्होंने 20 किताबें लिखी है। याद रखेंगे आप, तकरीबन इन्होंने 20 किताबें तनकीद की लिखी है। तनकीदी तालीफ़ में इनकी जो किताबें हैं वो ज़्यादा एतदाल, नुक़्ता-ए नज़र, मेयार व इक़दार, तश्कील जदीद, अक़बाल और आलमी अदब, ये सब इनकी तनकीदी किताबें हैं और ये बहुत मशहूर व मारूफ़ किताबें हैं। वफ़ात यानी इनकी मौत 5 सितंबर सन ईस्वी 2006 पटना में हुई है। ये थे हालात ज़िंदगी डॉक्टर अब्दुल मुगनी के। अब आइए हम अदब की पहचान को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अदब की पहचान जो ये चैप्टर है, इसमें लिखने वाले राइटरों के बारे में बताया है कि उनको किन किन बातों का और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कहानी को लिखते वक्त या किसी भी चीज़ को तहरीर करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि एक होता है अदब ख़ास और एक होता है अदब आम। फिर एक जुज़ बताया है कि एक होता है फ़िक्र और दूसरा होता है फ़न। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। अदब की पहचान उसे कहा जाता है कि जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं और उसको मतलब कि हम बड़ी मेहनत से, लगन से और दिलजोई से पढ़ रहे हैं और उस किताब से हमें इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है, हमारे अंदर तब्दीली आ रही है, हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, यानी कि हम तहज़ीब व तमद्दुन के हिस्से में हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर तहज़ीब और तमद्दुन और इकराम एहतराम पैदा हो रहा है, तो समझिए आप अदब के मरहले को सीख चुके हैं। हमारी मेज़ों पर बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं और हम बहुत सारी किताबें पढ़ते भी हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना कमाल नहीं होता है, बल्कि पढ़कर समझना कमाल होता है। पढ़ने के लिए तो पूरी दुनिया है काफ़ी, पूरी दुनिया पढ़ती है, लेकिन समझदार वही होते हैं जो पढ़े और समझे कि राइटर ने कौन सा रास्ता दिखाया है और किस रास्ते से मना किया है, राइटर क्या कहना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, अदब की पहचान की एक वजह ये भी है कि जब हम किसी किताब को पढ़ें तो देखें कि लिखने वालों ने, मुसन्निफ़ों ने, राइटरों ने अल्फाज कैसा कैसा इस्तेमाल किया है। क्या उनके अल्फाज में दम है, ताकत है या नहीं है? क्या उनके अल्फाज हमें झंझोड़ते हैं, हमारे दिल को हिला देते हैं या नहीं हिला देते हैं? ये एक तरह से अदब की पहचान होती है। अब अगर आप या कोई भी शख्स कोई कहानी लिखे, किसी भी चीज़ को लिखे, तो उसमें अदब की पहचान की एक कैटेगरी को देखना पड़ता है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा, अदब ख़ास, यानी आप उसके अंदर ऐसे उतर जाएं, लिखने में ऐसे घुल मिल जाएं कि आप पूरी दुनिया को भूल गए हैं। सिर्फ आपका फोकस, आपका जहन और आपका दिल उसी कलम और कागज़ पर है जहां पर आप लेकर बैठे हुए हैं और लिख रहे हैं। तब कहीं जाकर उस लिखे हुए में दम होगा और ताकत होगी। एक होता है अदब आम। अदब आम उसे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लिख तो देते हैं लेकिन समझ में बात नहीं आती कि क्या लिखा गया है। और अदब आम उसे भी कहा जाता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम समझते नहीं कि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा है। अब लिखने वालों के लिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने 2 जुज़ और बताए हैं कि जब कोई राइटर किसी भी चीज़ को लिखे, चाहे वो शेर हो, अफसाना हो, नावल हो, तनकीद हो, कोई भी चीज़ हो, तो जब वो राइटर लिखे तो उसके अंदर 2 फ़न होने चाहिए।
दो फ़न। अगर आप भी किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपके अंदर भी दो फ़न होने ज़रूरी हैं। अगर ये दो फ़न आपके अंदर नहीं है तो आप राइटर नहीं है, मुसन्निफ़ नहीं है। जैसा कि अदब की दुनिया में और अहद हाजिर में ये जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी थे ना, इन्होंने अदब की बुनियाद पर इतने बेहतरीन अंदाज में लिखा है कि मत पूछिए। इन्होंने एक नई चीज़ इजाद किया, लोगों को बताया कि अदब ऐसे होता है और अदब ऐसे लिखा जाता है। वो फ़िक्र व फ़न क्या होते हैं उन्होंने लिख करके बताया और सिखाया। इनकी जो किताबें हैं उनमें अदब की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने दुनिया वालों को अदब के पहलू पर चढ़ाया है और ऐसे चढ़ाया है कि लोगों का चढ़ना बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने अदब की बहुत सारी बातें लिखी। उनके सुखनवर थे, यानी कि उनकी जो किताबें थी, उनके जो लफ्ज़ थे, उनकी जो बातें हैं किताबों के अंदर, उसको अदब के बुनियाद पर डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं। तो इस लिखने में दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है, एक फ़िक्र और एक फ़न। जब आप किसी चीज़ को लिखें तो सबसे पहले आपके अंदर फ़िक्र होनी चाहिए, आपके अंदर जो है ये जज्बा होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिख रहे हैं या यूं ही वक्त गुजारने के लिए लिख रहे हैं। अगर आपके अंदर किसी बात की, किसी चीज़ की फ़िक्र होगी ना तो आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल करेंगे। इसी तरीके से जब आप लिखने के लिए बैठेंगे तो सबसे अव्वल नंबर पर फ़िक्र होनी चाहिए। फ़िक्र, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया मिट जाने वाली है, कुरान कहता है, हदीस कहती है ये दुनिया मिट जाएगी। हर मुसलमान जानता है कि क़यामत आने वाली है। हम लोग किस बात की फ़िक्र करते हैं? ये दुनिया तो मिट जाएगी, लेकिन एक दुनिया और है जिसे आखिरत कहते हैं। हमारी आखिरत अच्छी हो जाए उसकी फ़िक्र हम करते हैं। उसकी फ़िक्र करने के लिए हमें ईमान बनाना पड़ता है, ईमान सीखना और समझना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप कहानी को लिखेंगे और कहानी के अंदर खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं और कहानी को दमदार बनाना चाहते हैं, शेर व शायरी को मशहूर करना चाहते हैं, तो अव्वल आपको फ़िक्र होनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो ताकतवर हो, वो दम वाला हो। नंबर 2, आपके अंदर फ़न होने चाहिए। फ़न क्या होता है कि लिखने की कलाकारी होनी चाहिए, लिखने का अंदाज़ खूबसूरत होना चाहिए, सुनहरा होना चाहिए। आप देखेंगे ना कि सीरियल्स में, फिल्मों में जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है और उसकी एक्टिंग में दम ना हो तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, उसकी फिल्में नहीं चलती हैं। लेकिन अगर एक्टर में दम हो, डायरेक्टर में दम हो तो फिल्म जो है मशहूर हो जाती है, पूरी दुनिया में वो फिल्म वायरल हो जाती है। तो जैसे एक्टर में फ़न होता है वैसे आपके अंदर भी ये फ़न होने चाहिए कि आपने कलम को जो पकड़ा है तो आप ऐसे अल्फाज को चुनेंगे और ऐसे अंदाज़े बयां आपकी होगी तहरीर में कि लोग पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे और हैरत ज़दा रह जाएंगे। तो ये 2 जुज़ हैं। इसी तरीके से अदब की पहचान की जाती है या अदब को लिखा जाता है। तो ये था मुख्तसर मज़मून जो मैंने आपको सुनाया है। अब आइए हम इस मज़मून के सवालात को देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवालात। नंबर 1, ज़ेर निसाब अदब की पहचान के मुसन्निफ़ कौन है? तो आपकी किताब में जो अदब की पहचान लिखा हुआ मज़मून उसके राइटर कौन है? तो सीधी सी बात है, प्रोफेसर अब्दुल मुगनी है। नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है ये सन ईस्वी 1934 में औरंगाबाद में पैदा हुए। नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम बताइए। तो हमने यहाँ 3, 4, 5 किताबों को बताया है, आप उसमें से 2 किताब लिख देंगे, जादा-ए-एतदाल या नुक़्ता-ए-नज़र। नंबर 4, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसे से कहाँ तक की तालीम हासिल की? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी मदरसा शमसुल हुदा से आलिम की डिग्री ली और आलिम तक की तालीम हासिल की। नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल मुगनी मुलाज़मत का आगाज़ किस कॉलेज से करते हैं? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी मुलाज़मत का आगाज़ पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से करते हैं। अब है तवील सवालात। नंबर 1, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तनकीदी निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो इस पर आपने लिख देना है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो तनकीदी मज़ामीन
لکھتے تھے اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہوا کرتی تھی، لکھنے کا انداز بڑا سنہرا ہوتا تھا، اور ان کے لفظوں میں وہ نوعیت ہوتی تھی، وہ کلا ہوتا تھا، اور وہ فن ہوتا تھا، وہ فکر ہوتی تھی جو بہت کم لوگوں کی زندگی میں اور بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں اور بہت کم لوگوں کے قلم میں ملتا ہے۔ ایسے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت لفظوں سے کسی بھی چیز کو لکھتے تھے کہ پڑھنے والے اس سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالنا ہے۔ تو میں نے ادب کی پہچان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کسی کہانی کے بارے میں، کہ کہانی ہم کو کیا درسانا چاہتی ہے، کیا بتلانا چاہتی ہے، شعر و شاعری ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے، ہم یہ کیسے سمجھیں گے، تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھ دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر نمبر 8 کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ اب آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور آپ محنت سے، لگن سے، دل سے پڑھائی کریں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں، یاروں میں شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ نے کچھ سیکھا ہے، کچھ پڑھا ہے، تو آپ لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اب مجھے آپ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی چیپٹر نمبر 9 کے ساتھ۔ السلام علیکم۔